Ignited Minds Tutorials has recently launched an informative video series on the mathematical topic of triangles. These videos cater to students studying in Class 10 across various boards like CBSE, Maharashtra State Board, and others. The series aims to provide a comprehensive understanding of the subject, covering essential concepts such as the basic proportionality theorem, theorems on similarity, and congruency. The tutorials focus on simplifying complex topics and breaking them down into easily digestible segments. By offering step-by-step explanations and examples, Ignited Minds Tutorials ensures that students can grasp the concepts with clarity and confidence. The videos also incorporate visual aids, diagrams, and interactive exercises to enhance the learning experience. Understanding triangles is crucial as they form the foundation of geometry and have practical applications in real-life scenarios. Whether it's calculating the length of a side, determining angles, or solving problems involving triangles. This video series equips students with the necessary knowledge and problem-solving skills. Ignited Minds Tutorials' dedication to providing quality education shines through in their instructional videos. Their commitment to helping students succeed in mathematics is evident in the meticulous explanations and emphasis on conceptual understanding. With this series, students can ignite their minds, overcome challenges, and excel in the world of triangles and mathematics. ओके बच्चा पढ़ी तो अपन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कर रहे थे। चलो वैसे वैसे करना है फटाफट। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। फटाक से करना है, जल्दी से करना है। खत्म हो गया। If the areas of two similar triangles are equal, then prove that they are congruent. तो अपन ने मान लिया यहाँ पे, देखो ऐसे सिचुएशंस में ना आप गिवन लोगे, ठीक है। गिवन यहाँ पे दिया हुआ देखो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और क्या है बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी is equal to area of triangle PQR, ठीक है, क्लियर है। गिवन यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, देखो इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो अभी टू प्रूव क्या होगा, टू प्रूव में क्या लिखेंगे बोलो, टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC, दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। ओके बताइए कैसे प्रूव करेंगे। अरे बोला ना बोला, जल्दी से बोला। अरे भाई साहब देखो आपने पढ़ा है इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब the ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। कल ही हमने ये किया है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये कितना हो जाएगा बोलो, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर, इसका रीजन क्या लिखेंगे बोलो, द रेशियो ऑफ एरियाज, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू the ratio of
the ratio of the squares of their corresponding sides, the ratio of the squares of their corresponding sides, ठीक है. The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू दिस, ठीक है. अभी यहाँ पे क्या है, देखो AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर, यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1, है ना भाई साहब, ये दोनों बराबर हैं. अगर ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ना भाई साहब, ये दोनों बराबर हैं, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई PR का स्क्वायर, ठीक है. तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं भाई, इसको ले लो, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू PQ. सिमिलरली हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली बोलो ना, बोलो BC इज इक्वल टू QR एंड सिमिलरली AC इज इक्वल टू PR, ठीक है. AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR, ठीक है. तो देयरफॉर अभी यहाँ पे 1 2 एंड 3, देयरफॉर इन ट्राइंगल्स कौन कौन से भाई साहब, ABC, देयरफॉर इन ट्राइंगल्स ABC एंड PQR हमारा क्या क्या बराबर हो गया, देखो AB इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू PR एंड BC इज इक्वल टू QR, ठीक है. सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. समझ में आता है भाई साहब, यहाँ पे S S S, ठीक है, क्लियर है, ठीक है. सो ये आपको प्रूव करना था. सो ये ट्राइंगल ABC हो गया, ट्राइंगल PQR हो गया. ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, सॉरी सिमिलर टू, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR दैट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर, AC स्क्वायर बाई PR स्क्वायर. द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. एक्चुअली में आप लोगों को क्या करना चाहिए मैं बता रहा हूँ, इस तरह से सवाल को लिख के रखो कम से कम, ठीक है. यहाँ पे मैंने समझाया है आपको, आप चाहे नोट डाउन करें या ना करें, घर पे जाकर इस सवाल को फिर से अपने आप से करें, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले दिन का वीडियो देख लें. ये इससे आपका मैथ्स मजबूत होगा. मैं आपको टैक्टिक्स बता रहा हूँ, वरना यहाँ पे तो आपने मुंडी हिला लिया, शायद समझ भी आ गया, लेकिन ये आपके ब्रेन में रिटेन्ड नहीं रहेगा जब तक आप इसको खुद नहीं करेंगे. कम से कम सवाल को हर बार लिखते चलो, ताकि घर में जाकर उन्हीं सवालों को फिर से एक बार करो, अपने से करो. यहाँ पे पूरा नोट डाउन नहीं करना है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे समझिए कि कैसे किया गया है, दैट विल बी एनफ. गो एंड डू इट बाय योर ओन एट योर होम. You will have a strong grasp on maths by doing things like this. यही चीज़ें, माइंड हमारा ना भाई साहब इंटेलिजेंट नहीं होता है, उसको इंटेलिजेंट बनाना पड़ता है. और इंटेलिजेंट बनते हैं आप रिपीटेटिव पैटर्न से, रिपीट 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 रिपीट. आप सोचिए ना, आज की तारीख में आपके सामने खाना परोसा जाए तो आप खुद से खा सकते हैं. जब आप छोटे बच्चे थे, 4-5 महीने के या 1 साल के, खुद से खा पाते थे नहीं. तो माइंड में एक रिपीटेटिव पैटर्न चला ना भाई साहब, खाने को हाथ से वैसा कैसे खाया जाता है, सिंपल, ये सारे एक्शंस, ठीक है. मैथ्स के प्रॉब्लम हो या फिजिक्स के प्रॉब्लम हो, साइंस के प्रॉब्लम्स हो, ये सारा आपका रेपिटेटिव पैटर्न से ही होता है. आपके माइंड ने एक बार डिसिप्लिन कर लिया, एक डिसिप्लिन तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आप नतीजे तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे. डिस्ट्रैक्टेड तरीके से सोचेंगे तो नहीं पहुंचेंगे भाई साहब, ठीक है. तो इसको डिसिप्लिन करने के लिए कुछ नहीं करना है. डिसिप्लिन मतलब ये नहीं होता है कि सुबह सुबह भाई साहब एकदम लाइन में खड़े हो जाओ और मतलब कोई प्रेयर या मीटिंग करो, नहीं. डिसिप्लिन मतलब ये होता है कि आप सोचें, सही तरीके से सोचें और अप्लाई करें अपने नॉलेज को, और जितनी बार इसको करते रहेंगे उतना बार आपका स्ट्रांग होता रहेगा, क्योंकि माइंड में आपका एक रेपिटेटिव पैटर्न डेवलप हो रहा है. दिस इज हाउ यू विल डू इट. तो आप भाई साहब इस सवाल को लिख लीजिए और यही सवाल घर पे जाकर कीजिए. मुझे क्यों आपको अलग से होमवर्क देना पड़ेगा, आप यही सवाल जाकर घर में जाकर कीजिए कि आप कर पा रहे कि नहीं, खुद से देखिए. नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ तो आपने समझ लिए है, थोड़ा सा वीडियो देख लेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है. क्लियर है, ओके. सो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. तो ये वाला रेशियो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है. सो ये वाला हो गया आपका 1. तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, AC स्क्वायर बाई PR स्क्वायर.
तो आपका ये 1 हो गया, तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर आपका ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ओके। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अपन ने देखो यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल्स लिया हुआ है, कल हमने इसका प्रूफ किया था। ठीक है, वी हैव डन द प्रूफ यस्टरडे, श्योर है किया था भाई साहब? ओके, चलिए भाई साहब, टू प्रूफ, तो अगर हमको प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? देखो हमको यहाँ पे ये प्रूफ करना है ना, हाउ वुड बी प्रूव दिस? तो यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर डाला, इधर से अपन ने एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, अभी देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बीसी इंटू एडी, हाफ इंटू बीसी इंटू एडी। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस। ठीक है, ओके, सो दिस विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर हमने इनको बराबर किया तो एरिया ऑफ दिस विल बी बीसी इंटू, ठीक है, ओके। नाउ अभी देखो यहाँ पे हाफ और हाफ भाई साहब हो गए कैंसिल। ठीक है, तो कितना बचा? बीसी बाई क्यू आर एंड एडी बाई पी एस। ठीक है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ये अपने को मालूम है, क्यों? दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो यहाँ पे? ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा? देखो ए बी बाई पी क्यू अपॉन ए बी बाई पी क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे कैसा है, अगर हमने यहाँ पे किया ए बी बाई पी क्यू इंटू ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एस। देखो ये ए डी बाई पी एस को, ए डी और ये आपका क्या है? पी एस। हमने क्या प्रूव किया? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ठीक है, प्रूव नहीं किया, ये दिया हुआ है, तो अपन लिख सकते हैं भाई साहब ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ऐसा लिख सकते हैं बाई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल आपका ए बी सी क्या है भाई साहब? ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या है? सिमिलर है, तो अपन लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। तो इस बी सी बाई क्यू आर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी हम इसमें आते हैं। देखो कौन से ट्राइंगल में? ये वाले ट्राइंगल में और ये वाले ट्राइंगल में। कौन से? इन ट्राइंगल्स, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब? ए बी डी एंड पी क्यू आर। इन ट्राइंगल्स ए बी डी एंड पी क्यू आर, तो बताओ कौन कौन से बराबर हो जाएंगे? यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा भाई। देखो एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू। कोई बता सकता है क्यों? वाई एंगल बी और एंगल क्यू बराबर क्यों होंगे? क्योंकि आपका यहाँ पे ए बी सी और पी क्यू आर बराबर है। ठीक है, सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी क्यू आर, we can say that angle B is equal to angle Q, corresponding angles of similar triangles। तो एंगल B और एंगल Q बराबर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे? ओके, और क्या बराबर है बोलो? एंगल ए डी बी पी एस आर, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल पी एस आर, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। रीजन भाई साहब क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, ए क्राइटेरिया या टेस्ट? ए टेस्ट और ए क्राइटेरिया। ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम अगर ऐसा होता है तो अपन क्या बोल सकते हैं बोलो? ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एस आर ना, सॉरी ए बी बाई पी क्यू विल बी इक्वल टू बी डी बाई क्यू एस, आई एम सो सॉरी, बी डी बाई क्यू एस एंड ए डी बाई पी एस। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ए डी बाई पी एस की जगह पे, इस ए डी बाई पी एस की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए बी बाई पी क्यू इसकी जगह पे लिखा और ए बी बाई पी क्यू इसकी जगह पे लिखा, तो कितना आ गया बोलो? ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर। और अपने को मालूम है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ऐसा भाई साहब मालूम ही है हमको। ठीक है, ओके, सो क्या लिख सकते हैं भाई साहब यहाँ पे? ए बी बाई बी सी बाई क्यू आर। ठीक है, सो ए डी ए बी बाई, तो आपका भाई साहब हो गया यहाँ पे कितना? ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स गिवन, आपका ट्राइंगल ए बी सी, ड्रॉ परपेंडिकुलर। आपने भाई साहब यहाँ पे ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर। आपको यहाँ पे मालूम है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है? सिमिलर है, तो ए बी बाई पी क्यू आप क्या लिख सकते हैं?
BC बाई QR, तो ये हो गया AC बाई PR। और इसी तरह से इन दोनों ट्राइंगल्स में आपने ये प्रूव कर दिया, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया बोलो, AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर। ठीक है, so that basically prove that the ratio of the areas of the two similar triangles is equal to the square of the ratio of the corresponding medians। ये प्रूव करना है। चलिए, आप बोल सकते हैं कि आपको ये नहीं है, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स का प्रूव आपको रहेगा। सिमिलर ट्राइंगल से कोई भी चीज़ आपको अगर प्रूव करने रहेगी तो वो रहेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि भाई साहब एरिया से शायद रिलेटेड ना रहे, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल से अगर कोई भी चीज़ या कॉन्सेप्ट रहेगा और उसमें आपको रिक्वायर्ड टू प्रूव रहेगा तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। आप लोगों को तो फिलहाल है। ठीक है, बुक खोल के देखा है क्या है नहीं है, हैं? कब भाई साहब इस जीवन में कुछ होने वाला है पता नहीं। हो गया डन। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। हो गया डन डन डन। तो यहाँ पे आपको क्या देखो, ये सारी चीजें ना जब वहां पे आपको ऐसा दिया रहेगा प्रूव दैट दिस, ठीक है, वहां पे सारी चीजें आपको अज्यूम करनी पड़ेंगी। आपको डायग्राम तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, और डायग्राम ड्रॉ करने के वैसे वैसे स्केल उसे मत करना। ठीक है, सिंपल ऐसे रफ डायग्राम भी चलेगा। तो यहाँ पे गिवन, ठीक है, सो गिवन यहाँ पे क्या है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और क्या है भाई साहब, AD इज मीडियन एंड PS इज मीडियन। ठीक है, AD और PS क्या है भाई साहब, मीडियंस हैं। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। स्क्वायर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस मतलब AD का स्क्वायर और PS का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये आपको प्रूव करना है। चलिए फटाक से करना है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। इसमें सब कुछ आपको ही सजा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, डन 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 डन। देखो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ, टू प्रूव है ये, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये कौन बातें कर रहा है भाई साहब, ये काव्या क्या हो रहा है क्या हो रहा है, टू प्रूफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब आपका प्रूफ, प्रूफ में अपन क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये कितना हो जाएगा बोलो, विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई PR का स्क्वायर। अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ एरियाज, the ratio of areas of two similar triangles, the ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares, the ratio of the squares of their corresponding sides, ratio of the squares of their corresponding sides। ठीक है, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इधर
ये तो हो गया भाई साहब आपका। अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो इन ट्राइंगल्स, यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं इन ट्राइंगल्स कौन कौन से भाई साहब, ए बी डी एंड ए बी डी एंड पी क्यू एस, ठीक है। क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो, एंगल, यहाँ पे देखो ए एंगल 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 बी, क्या कर रहा हूँ मैं, ये सब गड़बड़ कर दिया मैंने, एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी आपका क्या दिया हुआ है भाई साहब, इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। देखो ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और क्या हो जाएगा बोलो, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ऐसा लिख सकते हैं, ए सी बाई पी आर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अभी ये जो बी सी बाई क्यू आर है, अगर मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से, ठीक है, तो मुझे बताओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर भी आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया है, नीचे भी आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया है, हाफ ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, बी डी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी इज हाउ मच, बी डी, हाफ ऑफ क्यू आर इज हाउ मच, क्यू एस इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है, क्लियर है। तो आप यहाँ पे देख लो, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एस, ठीक है। और क्या है भाई साहब, आपने यहाँ पे एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर कर दिया, तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। रीजन एस ए एस, ठीक है, रीजन आपका हो गया भाई साहब एस ए एस, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, पी क्यू आर, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी, सॉरी ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो 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 बोलो, ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। ये आपका रीजन है कि नहीं, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ओके। अभी यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जो दिया हुआ है, देखो ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, आपका पी क्यू आर, ये कितना होगा बोलो, ये दोनों भी ट्राइंगल तो सिमिलर है ना, ये तो दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, अरे यार मैंने यहाँ पे आपका होगा बी डी बाई क्यू एस, ठीक है। और क्या होगा भाई साहब आपका ए डी स्क्वायर बाई पी एस का स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू एस होगा, ठीक है, पी क्यू आर नहीं होगा, यहाँ पे पी क्यू एस होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया आपका ए बी का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, सॉरी ए डी का स्क्वायर अपॉन पी एस का स्क्वायर
इज इक्वल टू, तुम तब से हंसी जा रही हो, मतलब वो कुछ और ही चल रहा है वहाँ पे, ए बी का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर बाई पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर अपॉन क्यू एस का स्क्वायर। अभी ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी का स्क्वायर बाई पी क्यू आर का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बाई पी आर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, क्यू बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सो दिस विल बी बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ये वाला इक्वेशन देखो 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों में देखो, दोनों में आपका ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर है, दोनों में आपका ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, देखो ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर ए डी बाई, तो मतलब देखो ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इसके बराबर और ये भी भाई साहब इसके बराबर। ठीक है, तो अपने आप को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस जगह पे ए डी बाई, देखो ए बी बाई पी क्यू स्क्वायर की जगह पे ए डी बाई पी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना भाई साहब, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर बाई पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर। इन चारों को कंबाइन कर दिया हमने, तो अभी अपन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, पी क्यू आर, दिस विल बी इक्वल टू, अपने पहले क्या लिखा था भाई साहब, ठीक है, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, सो इस ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर की जगह पे अपन लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर बाई पी एस का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। सो यहाँ पे देखो आपको गिवन, ये जहां पे भी आपको ऐसा दिया रहेगा ना, प्रूव दैट, जहां पे ट्रायंगल एंगल कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एकदम खाली मैदान है भाई साहब, तो आपको अपने आप से चीजें अज्यूम करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पे क्या है, सिमिलर है, एंड ए डी एंड पी एस आर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। मीडियंस मतलब क्या होते हैं, आप वर्टिसेस से ऑपोजिट साइड पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर बाई पी एस स्क्वायर। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, भाई साहब ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अभी ए बी बाई पी क्यू आपका कितना हो गया भाई साहब, बी सी बाई क्यू आर, है ना, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और बी सी क्या है आपका, बी सी है ट्वाइस ऑफ बी डी, और क्यू आर क्या है आपका, ट्वाइस ऑफ क्यू एस, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी डी अपॉन ट्वाइस, जैसे मैंने हाफ किया था यहाँ पे आप 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको भाई साहब क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू, यहाँ पे क्या था देखो, बी सी बाई ए बी बाई पी क्यू कितना था, बी सी बाई क्यू आर था, तो ए बी बाई पी क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बी डी अपॉन ट्वाइस ऑफ क्यू एस, है ना, क्योंकि आपने प्रूव, देखो आपने यहाँ पे क्या प्रूव किया, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। अभी बी सी भाई साहब आपका कितना है, ट्वाइस ऑफ बी डी, और क्यू आर आपका भाई साहब कितना है, ट्वाइस ऑफ क्यू एस, तो ए बी बाई पी क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बी डी अपॉन ट्वाइस ऑफ क्यू एस। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एस, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस। ठीक है, तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एस, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर बाई पी एस स्क्वायर। ठीक है, so therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equal to AD square by PS square. ठीक है, okay okay okay, results related to the ratio of the areas of two similar triangles. So result 1, ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of the corresponding altitudes. ये प्रूव कर सकते हैं भाई साहब, the ratio of the areas of two similar triangles, चलिए प्रूव कीजिए इसको जरा फटाफट, फटाक से करना है। नींद आ रही है तेरे को बहुत जोर से,
ओके यहाँ पे देखो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। तो आप यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल्स ले लेंगे, कोई भी एक। आपने यहाँ पे भाई साहब ट्राइंगल बना दिया लेट्स से, तो यहाँ पे आपने दो ट्राइंगल्स ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल ए बी और ये सी है, और ये हो गया लेट्स से डी ई एंड एफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, गिवन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स। अभी हमने भाई साहब यहाँ पे क्या किया है, ऑल्टीट्यूड डाला हुआ है। तो लेट्स से ये आपका ऑल्टीट्यूड मतलब ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे भाई साहब परपेंडिकुलर। तो लेट्स से ये हो गया आपका क्या डी एक्स, और ये हो गया क्या आपका डी वाई, ठीक है। और क्या बोला है आपने, ए एक्स इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी वाई इज परपेंडिकुलर टू ई एफ। AX is perpendicular to BC and DY is perpendicular to EF। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है भाई साहब, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। सो टू प्रूव आपको यहाँ पे क्या रहेगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DF। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the ratio of the squares of their corresponding altitudes। squares of the corresponding altitudes मतलब ax का स्क्वायर अपॉन dy का स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई साहब यहाँ पे प्रूफ करते हैं अपन। प्रूफ में अपन क्या करेंगे, प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। ये तो आपका गिवन दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बोलो ए बी, तो एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल ई, है कि नहीं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, क्लियर है। नाउ अभी हम लेंगे भाई साहब कौन से, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड DEF। Now in triangles ABC and ABC ABX होगा, ठीक है, ABX एंड DEY, ठीक है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। लेट्स से आपने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1, ऑलरेडी प्रूव्ड है भाई साहब। और क्या बराबर बोलो, और क्या बराबर होगा, एंगल AXB will be equal to angle DYE because both are equal to 90 degrees, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, therefore triangle ABX is similar to triangle DEY। रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, AA टेस्ट और क्राइटेरिया, ठीक है, ओके, क्लियर है, आर बी क्लियर। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, therefore AB स्क्वायर बाई DE का, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं AB बाई DE इज इक्वल टू AX बाई DY, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं। AB बाई DE विल बी इक्वल टू AX बाई DY, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये हो गया लेट्स से आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ यहाँ पे आप क्या बोलेंगे भाई साहब, एरिया, हम यहाँ पे बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ये क्या होगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ
two similar triangles, the ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides, the ratio of the squares of their corresponding sides. ठीक है, the ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides. अभी देखो यहाँ पे ए बी और डी, ये आपका लेट्स से 3 हो गया. ठीक है, ए बी और डी किसके बराबर है? आपने प्रूव कर दिया ए एक्स और डी वाई के बराबर है, और यहाँ पे ये तो आपका भाई साहब रेशियो ही है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3. ठीक है, इस ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर की जगह पे तुम लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, area of triangle ABC upon area of triangle DEF. This will be equal to ax square by dy का square, ax square by dy का square. Clear है? Are we clear on this one people? समझम. Okay. तो the ratio of the areas of two similar triangles, आपने 2 triangles ले लिए, यहाँ पे ए बी सी और पी क्यू आर आपका क्या है भाई साहब? सिमिलर है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. ठीक है, ये आपको भाई साहब ऑल्टीट्यूड्स हैं, दीज आर बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे ए एम स्क्वायर बाई पी डी स्क्वायर, कोई भी एक ऑल्टीट्यूड आपका उठा लेना है. ठीक है, ओके. मीडियंस आपका हो गया भाई साहब. दूसरा रिजल्ट आपने ये प्रूव कर दिया है, द रेशियो ऑफ एरियाज, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. हमने प्रूव किया है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एरियाज, रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस एंड द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब हमारा मीडियंस का भी अपन ने प्रूव कर दिया है. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस. ओके, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals. जल्दी करना है भाई साहब, फटाक से करना है. फटाक से. Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square. तो अपन भाई साहब यहाँ पे एक स्क्वायर ले रहे हैं, ये आपका एक स्क्वायर है. ठीक है, और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल आपने यहाँ पे ले लिया. ये आपका भाई साहब एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है. ठीक है, वन साइड ऑफ अ स्क्वायर. ठीक है, अभी लेट्स से हमने डायगोनल ले लिया एक. ठीक है, ये स्क्वायर का हो गया भाई साहब एक डायगोनल. प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. अभी हमने देखो यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं हम. ठीक है, तो इस डायगोनल के बेसिस पे, तो डायगोनल के बेसिस पे अगर हम भाई साहब इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो लेट्स से ये आपका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया. ठीक है, तो ये आपका एक स्क्वायर है ए बी सी, और ये हो गया भाई साहब डी, ये हो गया आपका लेट्स से एक्स, और ये हो गया आपका वाई. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? गिवन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. ठीक है, ठीक है, और क्या है भाई साहब? ट्राइंगल ए बी एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड व्हाट एल्स? ट्राइंगल, देखो ये वाला ट्राइंगल सी बी वाई, ये भी आपका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है. ट्राइंगल सी बी वाई इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. ठीक है, टू प्रूव आपका क्या है भाई साहब? यहाँ पे सीन क्या बन रहा है टू प्रूव का? बताओ. टू प्रूव फटाफट से बताइए यहाँ पे. टू प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ triangle ABX
area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle, is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals. area of equilateral triangle कौन सा? BCY. समझ में आ रहा है? ये area of triangle ABX is equal to half the area of triangle BCY. area of triangle ABX is equal to half the area of triangle BCY. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू बेसिकली प्रूव. ठीक है, कैसे करेंगे भाई साहब बताइए फटाक से. अरे फटाक से बताना है. देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैंने माना कि लेट से ए बी की वैल्यू कितनी है, लेट से ए है. ठीक है, क्लियर है? तो आपका भाई साहब ए सी भी कितना हो जाएगा? देयरफॉर ए सी विल ऑल्सो बी ए. ठीक है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. ठीक है, ये भी आपका ए हो गया. मुझे बताओ यहां पे बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, है कि नहीं? बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि भाई साहब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सबके सब क्या होंगे? 90 डिग्रीज होंगे. ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a का स्क्वायर. तो बी सी स्क्वायर हो गया 2a का स्क्वायर. सो देयरफॉर बी सी कितना हो जाएगा? देयरफॉर भाई साहब आपका बी सी यहाँ पे कितना हो जाएगा? देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू √2a. क्या ये समझ में आ रहा है? बी सी की वैल्यू कितनी हो गई? √2a. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. अभी क्या ए बी एक्स और सी डी वाई, क्या ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे? भाई साहब एस 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 क्राइटेरिया से दोनों भी सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे कि नहीं? ठीक है, वी नो दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ए बी एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी वाई. ट्राइंगल सी बी वाई. रीजन आपका क्या हो जाएगा? एस एस एस. इस ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का, इस ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का, तो दोनों भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे बाई एस एस एस. ठीक है, ओके. अभी अपन को क्या करना है? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एक्स अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी वाई इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा बोलो? ए बी स्क्वायर अपॉन सी बी स्क्वायर. ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई? ए बी स्क्वायर अपॉन सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो भी है. ठीक है, अभी ए बी स्क्वायर बाई सी बी स्क्वायर, ये रीजन क्या हो जाएगा बोलो? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, the ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. The ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. क्लियर है भाई साहब यहाँ पे? ओके. अभी ए बी का स्क्वायर मतलब कितना हो गया बोलो? ए का स्क्वायर. और सी बी का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? √2a का स्क्वायर. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? ए स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर. ये और ये कैंसिल हो गया तो 1/2 आ गया. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एक्स, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी वाई. ठीक है, ये आपको देखो यहाँ पे प्रूव करना था. तो देयरफॉर अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ये ए बी एक्स, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या भाई साहब? सी बी वाई. ठीक है, यही आपका हो गया भाई साहब हेंस प्रूफ. यही आपको प्रूव करना था. प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर is equal to the half of the area of the equilateral triangle described on one side of its diagonals. Clear? Okay.
तो ए क्यू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी आर डी, ठीक है। तो आपका भाई साहब आपका हो गया ए बी स्क्वायर बाई बी डी स्क्वायर, ठीक है, बी डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब अंडर रूट 2x, देखो मैंने ए माना हुआ था, यहाँ पे x माना हुआ है, तो ये हो गया अंडर रूट 2x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका हाफ, ठीक है। ओके ओके ओके, अरे क्या हो रहा है भाई साहब, ये कौन सा खत्म हुआ, 9 ही खत्म हुआ इधर। D, E and F are respectively the midpoints of AB, BC and C of a triangle ABC. Find the ratio of the areas of D, F and ABC. चलिए फटाक से करना है। अरे यार ये हैंग हो जाता है ना, पूरा प्रॉब्लम। अरे भाई हैंग क्यों हो रहा है। अरे क्या यार, चलिए वैसे वैसे करना फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स। तो आपका कोई ट्राइंगल है भाई साहब, लेट्स से ए बी सी। तो ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। लेट्स से दिस इज बेसिकली ए बी एंड सी। डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। तो इसका मिड पॉइंट लेट्स से हो गया डी, इसका मिड पॉइंट लेट्स से हो गया ई, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट हो गया लेट्स से एफ, ठीक है। तो ये इसका मिड पॉइंट है, ये भाई साहब इसका मिड पॉइंट है, और ये इसका मिड पॉइंट है। डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए बी बी सी एंड सी ऑफ ट्राइंगल। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो भाई साहब डी ई एफ को अपन एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये डी ई एफ। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी सी।
चलिए फटाक से करना है इसको, फटाफट फटाफट। ई बी सी का मिड पॉइंट है, चलो भाई साहब ई बी सी का मिड पॉइंट कर देते हैं। तो ई बी सी का मिड पॉइंट है और एफ आपका ए सी का मिड पॉइंट है। चलिए फटाफट फटाफट